So, hello English learners, hope you all are well. And today is day 33, and today we are going to learn about the conjunctions. Okay? So, we have completed our tenses and passive voice and prepositions, and we learn about some daily use sentences which you can use in your daily life. And today, finally, we are going to learn about the conjunctions. Okay? Okay, so let's start about the conjunctions. What is the meaning of conjunction? Conjunction का meaning क्या है? First, understand the meaning. Conjunctions simply means these are some words which connects two words, phrase, or paragraph. Okay, so if you are going to see the definition of the conjunction, a word that joins two words, एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन करता है, और टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस. ओके, सो एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड या सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शंस. ठीक है, कंजंक्शंस is a word which connect two words, sentences or phrases. Okay, suppose let's take one example. You want to learn English but you don't have time. Okay, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो. You want to learn English but you don't have time. लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है. सो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, बट, BUT, बट. ये क्या है? ये कंजंक्शन है जो दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है. यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये एक वर्ड है, बट यू डोंट हैव टाइम, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है. तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो ये दो वर्ड को ये कनेक्ट करता है, बट. ओके, सो this is a one example of conjunctions. ठीक है, and the second example you can take I have two friends. One is Adish and second is Ram. So I said I have two friends. मेरे पास दो दोस्त हैं. One is आदिश एंड सेकंड इज एंड. हमने यूज किया एंड और दूसरा, सो एंड हमारे पास कंजंक्शन है. ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स एटलीस्ट. वी आर गोइंग टू लर्न एटलीस्ट 10 वर्ड्स इन डिफरेंट वीडियोस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड्स. ओके, सो कंजंक्शन. ओके, लेट मी राइट देयर. Conjunction. Okay, connect words. Connect words. Start. So 30 conjunctions we have. We are going to read one by one. Okay, the first conjunction, which is and. 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 Okay, and का मीनिंग क्या है? सबको पता है. and मतलब और. ओके, एंड का मीनिंग है और. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड. एंड हमारा एक कंजंक्शन है जिसका मीनिंग है और. सो राहुल इज ऑनेस्ट. राहुल इज ऑनेस्ट. ओके, एंड ही स्पीक्स इंग्लिश. एंड ही स्पीक्स इंग्लिश. राहुल इज ऑनेस्ट. राहुल एक ऑनेस्ट है. एंड ही स्पीक्स इंग्लिश, और वो इंग्लिश बोलता है. हमने यूज किया एंड, जो कि हमारा एक कंजंक्शन है. एंड मतलब और. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. कृष्णा एंड श्याम हेल्प्ड मी. ओके, Krishna and
श्याम हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। कृष्णा और श्याम ने हमारी मदद की। यू एंड मी आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, यू एंड योर फ्रेंड्स are going to visit Himalaya. So you can make lots of sentences using and. Okay, I like bread and butter. Yes, I like bread and butter. So इस तरह से हम sentences बना सकते हैं। and means और then second conjunction. Second is as well as. Okay, as well as आपने सुना होगा साथ साथ। ओके, इसका मीनिंग है साथ साथ। as well as साथ साथ, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। as well as means साथ साथ। he helped me as well as gave me some money. He helped me as well as he as well as gave me some money, as well as gave me some money, gave me some money. Okay, so we can use as well as मतलब साथ साथ, ठीक है। he helped me as well as साथ साथ gave me some money, साथ साथ उसने मुझे पैसे भी दिए। उसने मेरी हेल्प की और साथ साथ में उसने मुझे पैसे भी दिए, कुछ पैसे भी दिए, ठीक है। as well as he speaks English as well as teaches. he speaks English as well as teaches. Okay, he speaks English, वो इंग्लिश बोलता है, as well as teaches, और साथ साथ पढ़ाता भी है। ओके, let's take one more example. I learn English as well as teach. Okay, I learn English as well as teach. मैं इंग्लिश सीखता भी हूं और उसी के साथ साथ मैं पढ़ाता भी हूं, ठीक है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम इस तरह से बना सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, third conjunction, otherwise. Okay, so yes, let me erase it. Take a look. Okay, so otherwise, third, otherwise वरना, अन्यथा। otherwise मतलब वरना, ठीक है। so otherwise we also use otherwise in the sentence. so otherwise means वरना, अन्यथा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वरना, ठीक है। और ओ आर, और या बोथ आर सेम, और भी बोल सकते हो, ओ आर और, ठीक है, या वरना। So let's take example. Work hard, otherwise you will fail. Work hard, otherwise you will fail. Okay? Otherwise you will fail. Work hard, otherwise you will fail. मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज यू विल फेल और यू विल फेल,
नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो यूज अदरवाइज और या वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। एंड हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और you will miss the train, ओके। हरी अप, जल्दी करो, और you will miss the train, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक है। रीड बुक्स अदरवाइज फादर विल स्कोल्ड, रीड बुक्स अदरवाइज फादर will scold, okay। otherwise or otherwise, so otherwise means वरना और means या, ठीक है। so इस दोनों का मीनिंग सेम है, जस्ट यू कैन यूज इन द सेंटेंस। रीड बुक्स अदरवाइज फादर विल स्कोल्ड, डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू कांट अर्न मनी, अदरवाइज यू कांट अर्न मनी। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ वर्ड, ओके। फोर्थ वर्ड हमारा और आर है, और मीन्स या, ठीक है। और मीन्स या, और अदरवाइज का मीनिंग भी सेम है, ठीक है। अदरवाइज दोनों का मीनिंग सेम है, या। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, वर्क हार्ड और फेल। वर्क हार्ड और फेल, वर्क हार्ड और फेल, मेहनत करो या तो फिर फेल हो जाओ, ठीक है। या वर्क हार्ड, मेहनत करो, और फेल या तो फिर फेल हो जाओ, या तो फिर फेल हो जाओगे, और या। एंड सेकेंड एग्जांपल, कम हियर और कॉल हिम, कम हियर और कॉल हिम, यहां आओ या तो फिर उसे कॉल करो, ठीक है। टेक दिस और दिस, दो चीजें हैं, एक ये है एक ये। टेक दिस और दिस, ये ले लो या तो फिर वो ले लो। फिफ्थ है हमारा और एल्स, ठीक है। और एल्स हम बोलते हैं, और एल्स मीन्स है या फिर, ठीक है। और एल्स, ELSE, और एल्स मीन्स या फिर, ओके। डू होमवर्क और एल्स लिसन टू द टीचर्स स्कोल्डिंग, सो और एल्स का मीनिंग्स या फिर। डू होमवर्क, यस, or else listen to the teachers, listen to the teachers scolding, ठीक है। do homework और else means या फिर, ठीक है। डू होमवर्क करो, और एल्स या फिर लिसन टू द टीचर्स स्कोल्डिंग, हाँ, टीचर्स को डांटते हुए सुनो, ठीक है। वर्क हार्ड और एल्स फेस द सर्कमस्टेंसेस, वर्क हार्ड और एल्स, work hard or else face the circumstances, so work hard or else या फिर, ठीक है। wait here or else enter in the room, यहां पे वेट करो या फिर रूम में एंटर हो जाओ,
ठीक है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो अदरवाइज, और एल्स या फिर, ठीक है। सो यस, टेक ए लुक एंड देन आई एम गोइंग टू इरेज एंड वी आर गोइंग टू लर्न मोर। ओके, सो यस, और एल्स के बाद हमारे पास है देयरफॉर। ओके, देयरफॉर, ओके, THERE, देयरफॉर, FORE, देयरफॉर मीन्स इसलिए, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए। ओके, आई ड्रंक वाटर। सो इसको पहला सेंटेंस हम पास्ट में बनाएंगे। आई ड्रंक वाटर, आई ड्रंक वाटर, मैंने पानी पिया, ठीक है। देयरफॉर आई एम नॉट थर्स्टी एनी मोर, इसलिए मैं अब प्यासा नहीं हूं, ठीक है। आई ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया। Therefore, I am not thirsty anymore. I am not thirsty anymore. Okay? I drank water. मैंने पानी पी लिया. Therefore, इसलिए I am not thirsty anymore. इसलिए मैं अब प्यासा नहीं हूं. Therefore का यूज हमने किया इसलिए, ठीक है। I saved my money. I saved my money. I saved my money. मैंने अपना पैसा सेव कर लिया. Therefore, I am tension free now. Therefore, I am tension free now. Okay? I saved my money. मैंने अपना पैसा सेव कर लिया. Therefore, I am tension free now. I prepared for the examination. For the examination. I prepared for the examination. Therefore, I am free. I am free now. ठीक है। I prepared for the examination. मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है. Therefore, इसलिए I am free now. अब मैं फ्री हूं, ठीक है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. Therefore मतलब इसलिए, ठीक है। Therefore इसलिए. I studied hard. Therefore I topped the examination. I studied hard. Therefore I topped the examination. Okay, yes. And more. So, okay. So means इसलिए. Yes. Therefore means इसलिए. So means इसलिए. So का means इसलिए. Yes. We use so. इसलिए. I met my friend on the way, so I got late. इसलिए मैं लेट हो गया. I met my friend on the way. So I got late. Okay. So इसलिए I met my friend on the way. मैं अपने दोस्त से रास्ते में ही मिला. So I got late. इसलिए मैं लेट हो गया, ठीक है। I have not eaten, so I am hungry. Yes, I have not eaten, so I am hungry now. So I am hungry now. I have not eaten. मैंने कुछ नहीं खाया. So I am hungry now. इसलिए
मैं अभी भूखा हूं, इसलिए मुझे अभी भूख लगी है, ठीक है। सो if you don't want to listen, if you don't want to listen, so you can go. अगर तुम सुनना नहीं चाहते so you can go, तो तुम जा सकते हो, इसलिए तुम जा सकते हो, ठीक है। so का यूज करते हैं हम इसलिए, ठीक है। so इसलिए you didn't learn English, so you are learning now. yes, you didn't learn English, तुमने इंग्लिश नहीं सीखा, so you are learning now, इसलिए तुम अभी सीख रहे हो। yes, and now next conjunction is, yes, take a look, then I am going to erase it. okay, as उतना जितना, as so हमारा next है as. yes, this is a conjunction which is as, उतना जितना, इसका मीनिंग है सिंपल, उतना जितना, ठीक है। as he is not as brave as Advik, he is not as brave as Advik. okay, as brave as so इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, he is not as brave as Advik, ये उतना बहादुर नहीं है जितना एडविक है, ठीक है, ये उतना बहादुर नहीं है जितना एडविक है। she is not as beautiful as Leela, any name you can add, she is not as beautiful as my friend. okay, so you can you have to take one sentence and make lots of sentences. okay, as means उतना जितना, so इस तरह से हम sentences बना सकते हैं। हमें sentence में पहले as यूज करना है, then एक adjective होगा, उसके बाद एक comparison होगा, ठीक है, कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है, कंपैरिजन होगा कि किस तरह से होगा। as brave as Advik, you are not as clever as he is, you are not as clever as he is, ठीक है, as you are not as clever as he is, तुम उतने चालाक नहीं हो जितना कि वो है, ठीक है। your mobile is not as good as mine, your mobile is not good as, your mobile is not as good as mine, तुम्हारी मोबाइल मेरी मोबाइल इतनी अच्छी नहीं है। ओके, the computer is not as fast as mine, your computer is not as fast as mine, तुम्हारा कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं है जितना कि मेरा है। ओके, यस, सो as हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी as so. ओके, as so इसका मीनिंग क्या है? as so जैसा वैसा, जैसा वैसा, as so जैसा वैसा, ठीक है, यस, जैसा वैसा। as we think so we do, as और so ये दोनों सेंटेंस में एक साथ आएंगे, as और so। जैसे हमारे पास as था, दोनों as and so, as so मतलब जैसा वैसा, as we think so we do, as we think so we do, as और so, as we think जैसा हम सोचते हैं, so we do वैसा हम करते हैं,
सो एक का ट्रांसलेशन हुआ जैसा, एज वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं, सो वी डू, वैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। एज वी सॉ, सो वी रीप, एज वी सॉ, एज वी सॉ, एज वी सॉ, सो वी रीप। ओके, एज एंड सो, एज वी सॉ, सो वी रीप, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम निकालते हैं, ठीक है, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें मिलता है रिटर्न में, ठीक है, जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यू कैन से एज यू थिंक एज यू बिकम, एज यू थिंक एज यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, तुम जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। ओके, as you study so you get results, as you study, जैसा तुम पढ़ते हो, so you get result, वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बट, नेक्स्ट इज बट, ओके, BUT, बट, बट मीन्स हमें पता है, एग्जाम्पल हमने दिया था स्टार्टिंग में ही, लेकिन बट का एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में दिया, 2 सेंटेंसेस, बट मीन्स लेकिन, ओके। ही इज पुअर, ही इज पुअर, बट he is an honest, okay, he is poor but he is an honest, वो गरीब है, ठीक है, लेकिन वो ईमानदार है, ठीक है। he is very rich but he lives with the poor, I like yes, I like Rohan and Mohan, I like Rohan and Mohan, okay, so and, oh मैंने and यूज कर दिया, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, ओके। सो हमें बट यूज करना है, बट मीन्स लेकिन, ठीक है। ही इज पुअर बट ही इज एन ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। आई बट नहीं यूज करना है हमें, हमें यूज करना है बट, ओके, एंड नहीं यूज करना है। I like Ram, but I don't like Rahul. उसी सेंटेंस को हमने जस्ट कन्वर्ट कर दिया, बट I like Ram, but I don't like Rahul. Okay, he is very rich, but he lives with the poor. वो बहुत ही अमीर है, but he lives with the poor. लेकिन वो गरीबों के साथ रहता है, ठीक है। He wants to learn English, but he doesn't have time. वो इंग्लिश सीखना चाहता है, he wants to learn English, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, but he doesn't have time, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। I want to meet with you, I want to meet with you, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, but I don't have time, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। So इस तरह से हम sentences बना सकते हैं but का यूज करके, okay। So I hope now whatever we learned today about the conjunctions, you are going to remember all these conjunctions. Just write it down and take 2 or 3 examples, and just you can make more examples, 3, 4, 5, then you are going to know, yes, this is the meaning, and we are going to understand with the examples more,
Okay, so thanks for today, and we are going to learn something new tomorrow. So thanks for today.